8 years ago, I was praying and seeking God to lead me into something. My wife and me, we were engaged in some other work, and when we were praying, and God, through a mutual friend, connected me to Franco, and that's how my journey with Karuna started. And I've been in Karuna for 7 years. And 2018, I got you joined Karuna. What really inspired me was what the Bible was that Franco read from Mark. When I read about Jesus, that Jesus could have been that person with one word, be clean or be healed, and he would have been healed. There was no need for him to touch because his word has power. But Jesus reached out and touched it. There were many others Jesus healed even without touching or looking at them. But for a person with leprosy, it was so important to be touched. And that really inspired me because Jesus touched him. Because he wanted to not only heal his physical condition, but he is as a person, as a whole person, naked whole, and restore. Because he is also created in the image of God. In that made a big impact on me, and it really inspired me to see these people with leprosy from a different perspective. And the second thing that really inspired me to be part of Karuna team is Franco, because he is such a man of compassion. Like whenever he talks about people, then he talks about leadership and other things, he has a different tone. But when he talks about the patient, his tone and his demeanor just changes. He's filled with compassion. I've seen him so many times. Today I think he's really excited about 25 years. But most of the time when he shares about the work of Karuna, people with leprosy, he tears, mostly he tears. And so his compassion really inspired me. When I met him, this friend introduced us and I met him. I never heard Franco or met him before. But when I met him, sorry, sweet, it was love at first sight for me. So his my first meeting, and I was inspired because he was not only a man of compassion, but he took that God gave me the compassion and he turned it into action. And he started Karuna. And so I was so privileged to be part of the Karuna team. So that really inspired me, meeting Franco and talking to him. I thought leprosy was eradicated. But when I met him, I was really shocked and surprised. I said, wow, leprosy still exists. And so that really inspired me to join the team. The third thing that really inspired me or continue to motivate me and inspire me is the Karuna team. I am part of the Karuna team. But the rest of the team, they are amazing people. They love their work and they're so good because people like Venkatesh and Sashi, they clean these wounds. But they really care for these people. They clean open wounds with maggots, smelly and but they just get down to the job. And they just care for them. Simple things like cutting our nails. We don't think so much about, cutting our nails. But for them, it's a big deal to cut their nails because they can't cut nails, but the nails grow. And these guys, they just help them with that. And that makes a world of difference for them, cutting their nails. So my team really inspires. And guys like Rakesh and Doctor, we have Sonali also. When it comes to going and identifying a patient, they will stop at nothing. Last month we had to go to a village on the hills, far away. Nobody knows even that a place exists. There are only 8 families, and among them there's one child with leprosy. And we were just, in villages, when you go to villages, they'll say, how far is this village? 10 minutes, they'll say. And after 10 minutes, you ask them, they'll say 10 minutes. And we were going on for like 1.5 hours, 2 hours. Well, driving, and we never returned. Finally, we reached the village. The van couldn't go inside, so we had to walk up. And it started raining, but we still walked up. And there was, just for one person, our team said, no, we need to get this guy today. We need to somehow get him. We came all this way, we are not going back till we find him and, give him medicines. And so we did that. So the team really inspires me. And the fourth thing that inspired me when I joined Karuna team is that we are not alone. We know that the church is praying for us. We know the church really stands with us.
and really thank you so much for standing with us. Thank you, Michael. When I joined, Michael was there, and he is the softest spoken man I've ever met. And he encouraged me so much, and to be part of the team and to work with the team. And so the church really inspires us to keep going on with what we're doing, because we know that we are being backed with prayer, with support. And you guys, I told my team that you may not know everyone, we don't know everyone, but they all know us, because sometime or the other they may have seen a picture somewhere talking about Karuna. And thank you so much that you're really inspire us and motivate us to keep going and keep going. Thank you so much. इस यात्रा में मज़ेदार का जो फ्रैंको पात्र ने हमें पता कि उस समय में भी हम एक बड़ा चुनौती था हमारे एक पूरा समूह की है कि अफेक्टेड हो। और एक खूबसूरत बात है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद एक शिमोन खोरी व्यक्ति के घर में वो भोजन करता है। वो मुझे इंस्पायर हो गया, लेकिन मैं सोचा मैंने क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ये यीशु ने किया इसलिए मैं कर पा। तो मेरे जीवन में काफ़ी प्रभाव हो गया कि जो उत्साह है वो उत्साह मुझे उस स्क्रिप्चर से मिला, उस वचन से मिला। प्रोत्साहन है कि वचन मुझे अभी तक था उस उत्साह में बना के रखा है। तो वो चुनौती बहुत थी, जैसे कि हमने देखा है कि अफेक्टेड लोग, हमने देखा कि वो रास्ते पे थे, उनका जीना मुश्किल था, उनका ज़ख्म, और कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उन्हें टच नहीं करता था कि वो चले थे तो उन्हें भगा देते थे, पर ठीक तक नहीं मारते। लेकिन हमने उसकी ज़रूरतों को करुणा समूह ने देखा, और उनके लिए हम एक माँ और एक बाप बनकर हमने सेवा किया, और उनके भी हमने वरम पट्टी लगाया, और उस जगह से उन्हें उठाकर एक सम्मान किया जो समाज आज भी मुश्किलें देने के लिए। जो करुणा जो टीम है वो बेहतर टीम है, मैंने कहता हूँ हमसे भी बेहतर टीम होगा, लेकिन जो हमारा अनुभव हमें बता पा रहा हूँ, क्योंकि हमने जो किया है उनके हृदय को, उनके जीवन को स्पर्श किया। कि 20 साल 25 साल यात्रा में मैंने ये सीखा कि आज भी मुझे खुशी होती कि इस हाथ ने कितने जीवन को छुआ और कितने जीवन को स्पर्श किया। आज की उत्साह के साथ, उस विश्वास के साथ आज इस कार्य में हम सावधानी ले रहे। तो मेरा ये कहना है कि करुणा मेरे लिए मेरी कि इस करुणा जो प्रोजेक्ट में सेवा में मेरा शादी भी इस करुणा में सी, और बच्चे भी हो गए और बच्चे बड़े भी हो गए, लेकिन अब तक सेवा बरकरार है। और अब तक वही जोश है जो था, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन मुझे बनाते रखता है। और चैलेंजेस थे, लेकिन हमने उनके लिए साथ में खड़े हो गए और उनके लिए हमने हर ज़रूरतों को समझा। कभी रात को फ़ोन करेंगे 2 बजे, बोले कि हम इधर एक्सीडेंट हो गया उस तकरीब, लेकिन हमारा जो समूह है दौड़ कर 2 बजे 3 बजे जाकर उन्हें वहाँ से उठाकर अस्पताल में लेकर जाकर फिर वहाँ से उन्हें घर पहुँचा कर, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। यही कह रहा हूँ कि जो हमने किया है वो परमेश्वर के हृदय को छूने वाली बात है। कि परमेश्वर ने वो हार्ट दिया है और मुझे वो हार्ट दिया है, और फ्रैंको सर को वो हार्ट दिया, वो हम कर पाए। हाल ही में मैंने हमारा जो कृष्णा था पेशेंट था, और वो मुझे एक बार होता है कि मुझे पापा मिल गया, मतलब कौन पापा, यानी कि जो भी इसमें पापा मिल गया, मैं सोचा कौन पापा मिल गया। बाद में उन्होंने बोले कि वो सर का फ्रैंको सर, अरे उन्होंने मुझे मिला और वो बोला कि मुझे हाथ मिलाइए, और मेरा अच्छा वो कपड़ा, वो मेरा भी कपड़ा है। तो इस पर इतना खूबसूरत मैं फ्रैंको सर जो पेशेंट के लिए, अफेक्टेड लोगों के लिए वो इतना उत्साहित है, उस उत्साहित देखकर हम और उत्साहित रहते ताकि हमें प्रेरणा भी थे कुछ तो भी पीड़ित तो भी कार्य करने की। और एक उनकी खासियत है कि हम एनी टाइम उनको फ़ोन कर फ्रैंको सर को, तो कोई भी हालत है, लेकिन वो हमें ज़रूर जवाब देंगे, ज़रूर हमें समाधान देंगे, और हमें हमारे साथ हमेशा दीप के साथ खड़ा है। ये बड़ा हमारे लिए
सौभाग्य है फ्रैको सर, और उन्हें पास्टर भी बोलता, कभी साहब भी बोलता हूँ, मतलब पापा भी बोलता हूँ, ठीक है आज। लेकिन वो बड़ी अद्भुत तरीके से कुछ लोग पीड़ित लोगों के लिए वो खड़े, आज भी खड़े, और हमें प्रेरणा मिलता है कि अब और आगे जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी गवाही है जो मैं इस वक्त दे नहीं सकता हूँ, लेकिन कि जो बात है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और उसी के हमने उनके साथ एक यात्रा में प्रवेश हो गए। उनके साथ हम रोड पर बैठकर आराधना करने लगे, उनको वचन सिखाने लगे। कई लोगों का विश्वास आ गया, कई लोगों ने पीड़ित लोग उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा माने। कुछ लोग हमारे साथ नहीं है, वो आज हम विश्वास करते हैं वो प्रभु के साथ आज है। हम एक दिन भी जाएंगे, उनके साथ हम मुलाकात होएंगे, और हमारा रोज़गार तैयार है। आमीन। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है करुणा में काम करने का। जब मैं वॉलेसन का परिवार का भाग हुआ और मैं प्रशिक्षण लिया, और उसके बाद एक दिन ऐसे बातचीत चल रही थी। अब मैंने बहुत बार बाइबल में पढ़ा कुष्ठ रोग की बीमारी के बारे में, और मैं सोचते थे कुष्ठ की बीमारी है क्या। तो एक दिन ट्राइगन मुझे आके बोला कि अजय ऐसा बात है, सो क्या तुम करुणा में काम करना चाहोगे। तो करुणा के बारे में बहुत सुना था, बट मुझे पता नहीं था करुणा का काम क्या है। और फिर मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा। और जब मैंने ज्वाइन किया, और साइड बाई साइड पहले तो हम लोग का एम्बुलेंस जो था सिर्फ मुंबई लोकल में ही सेवा करती थी। और जब मैं उन पेशुओं को मिला, जैसे प्रकाश सर जो बता रहे थे वो हाथ के बारे में जो दिखाए, मैं जब मैं उनको देखा मेरा हृदय मतलब टूट गया, क्योंकि उनके हाथ खाने के लिए नहीं, चलने के लिए पैर नहीं। मुझे ये बात बहुत इंस्पायर किया। मैंने निर्णय लिया कि प्रभु जहाँ तक हो सके जो भी मेरे मुझसे बन पड़ेगा मैं इनकी सेवा करूँगा। और मुझे कुछ काम के बारे में पता नहीं था, और मैं वेंकटेश जब वो ड्रेसिंग करता था, जब वो जख्म को साफ करता था, तो मैं देखता था कि कैसे करता है। और ऐसी ऐसी जख्म जब हम देखते थे और वहाँ से उसके पैरों से कीड़े बाहर आते थे, वो सब साफ करते हुए देखता था। और मुझे भी बहुत वो बात बहुत इंस्पायर किया, बहुत टच किया, और मुझसे कि मुझे भी हाथ बटाना चाहिए इस कार्य में। और एक समय आया वेंकटेश ने मुझे बोला कि अजय अब तुमको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। मैं बोला ज़रूर करूँगा। और फिर मैंने धीरे धीरे ड्रेसिंग करना और उनकी मलन पट्टी करना, ये सब करना शुरुआत किया। और मुझे बहुत ही इच्छा था, और जैसा सुबह मैं जकरिया की स्टोरी पढ़ रहा था, और उस कहानी ने मुझे याद दिलाया कि यीशु के बारे में बहुत चर्चित था, और जकरिया था यीशु को देखना चाहता था, उसकी कामों को, उसकी चर्चित को सुनना चाहता था। और सेम स्टोरी मेरे अंदर भी जब कोरोना के बारे में सुना इस बीमारी को लेकर, तो मेरे अंदर भी एक चाहत उत्पन्न हुआ कि मुझे भी देखना काम क्या है, कैसे होती है कोरोना, काम मिलने पर ऐसी बीमारी होती है क्या। लेकिन जब मैंने इन बीमारियों के लोगों के साथ मेरा मुलाकात हुआ, और सचमुच में मैं बताऊं कि मेरा दिल इतना भर गया, और मैं बोलूँ कि मैं कैसे इनकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक बन सकता है मैंने शुरुआत में कुछ साल तक किया। 2014-15 के बीच में मैंने ज्वाइन किया था, और जब मेरी शादी हो उसके बाद अब 1 साल के बाद मैंने कोरोना को छोड़ दिया, क्योंकि हमने बिरार में कलीसिया शुरुआत किया था, तो वहाँ पे मुझे देखना था। फिर स्टार्टिंग हमारा कलीसिया का ग्रुप अच्छा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग रिव्यू सुनने लगे, कुछ कम हो गए। फिर वापस करीबन ने बोला भी वहाँ के लोग थोड़ा कम है, तो क्यों ना मुझे आपकी ज़रूरत लगे कोरोना में, और हमारा प्रोजेक्ट का काम थोड़ा बढ़ गया है, तो थोड़ा आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो मैं बोला ज़रूर मैं करूँगा।
और फिर अभी हम लोग ने जैसे बता रहे थे पेको सर ने कि जो BLD तालुका जो होता है थाने ज़िला के जितने भी PSC सेंटर है उस सब ने हमको गवर्नमेंट ने मत दिया है उस सर्वे के लिए, और उस सर्वे के काम में मैं जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेवा के लिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट को मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। सो थैंक यू सो मच वन नेशन परिवार, आपकी मदद के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्रार्थना के लिए। आपके प्रार्थना के द्वारा ही हम ये सब काम कर पाए, नता मुश्किल है। थैंक यू सो मच। So I like Pastor and Kalina team for investing in me, and so grateful. Now I'm able to stay with my parents and I'm able to study my higher education and this the church has put a CD we like to serve with people, and very thankful for that.